Bismillahirrahmanirrahim. Today from the syllabus of BA, the topic is short story, Arabi. Arabi by James Joyce. James Joyce. James Joyce was born in 1882 and he died in 1941. He was the founder, he was the champion of a technique called stream of consciousness. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اور رائٹر کو بھی پڑھا ہے جو کہ اسٹریم آف کانشیسنس کی گرینڈ چیمپئن ہے اور اس کا نام ہے ورجینیا وولف، جس نے سوسائڈ کی تھی. ورجینیا وولف بھی اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک میں لکھتی ہے. جیمز جوائس بھی اسٹریم آف کانشیسنس کی ٹیکنیک میں لکھتا ہے. دونوں نے کچھ کامن ناول بھی لکھے ہیں. پورٹریٹ آف این آرٹسٹ ایز اے ینگ مین بہت مشہور ناول ہے جیمز جوائس کا. سیم ٹائٹل کے ساتھ ورجینیا وولف کا بھی ناول ہے. جیمز جوائس واز آلسو اے تھیورسٹ اینڈ کریٹک، اور ورجینیا وولف بھی تھیورسٹ بھی تھی اینڈ شی واز آلسو کریٹک. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی سیم ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی سیم ہے، اور اپنی تھیریز کے اندر، لٹریری تھیریز کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اور اپنے لکھنے کے سٹائل کے اندر دونوں ہی استاد شاگرد نظر آتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جیمز جوائس تو اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک کے اندر گرینڈ ہے، اور ورجینیا وولف تو اس ٹیکنیک کو انتہا پر پہنچا دیتی ہے اور وہ تو چیمپئن کنسیڈر ہوتی ہے. آپ کو بار بار میں ایک ٹرم انٹروڈیوس کرا رہا ہوں جس کا نام اسٹریم آف کانشیسنس ہے. آئی ول ایلیبریٹ اٹ. میں آپ کو پہلے بتاؤں گا سٹوری شروع کرنے سے پہلے، تاکہ آپ سٹوری کو اسی انداز میں انالائز کر سکیں اور ایگزام میں بیٹھ کر ویسے انٹرپریٹ کر سکیں. جیمز جوائس واز بورن ان آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا، اور ہی واز ناولسٹ، کریٹک اینڈ شارٹ سٹوری رائٹر. کلیئر؟ عربی جو ٹائٹل ہے سٹوری کا، ایکچولی دیٹ از دا نیم آف آ بازار. یہ ایک بازار کا نام ہے، جیسے ہمارے ہاں لیبرٹی بازار ہے، مون مارکیٹ ہے. سیم لائک یہ ایک جیسے صدیق ٹریڈ سینٹر آپ نے دیکھا ہے، ایسے ہی یہ ایک بہت بڑا بازار ہے جو ایک پلازے کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑا سارا گھوڑا بھی انہوں نے، گھوڑے کا اسٹیچو بھی پلیس کیا ہوا ہے، اور بازار باہر سے بہت روشن چمکدار نظر آتا ہے. اس میں لائٹنگ وغیرہ اچھی کی ہوئی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹریم آف کانشیسنس کی. اسٹریم آف کانشیسنس کیا ہے؟ اگر میں اردو میں اس کا سمپل ترین میننگ کروں تو میں کہوں گا ذہن کے اندر جو خیال ہوتا ہے اسے اسٹریم آف کانشیسنس کہتے ہیں. خیال کو اسٹریم آف کانشیسنس کہتے ہیں. اگر کوئی اسے زیادہ قریب سے دیکھنا چاہتا ہے اس بات کو کہ اسٹریم آف کانشیسنس کیا چیز ہے، تو میں کہوں گا رینڈم فلو آف تھاٹس. اچھا، یہ بات مشکل ہے سمجھنا، میں اس کو مزید آسان کروں گا. دیکھو بیٹا، ہمارے ذہن کے اوپر مسلسل کسی مختلف قسم کی سوچیں ہمارے ذہن کے اوپر آتی جاتی رہتی ہیں. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ میں سامنے ٹری کو دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن کے اندر ایٹ دا سیم ٹائم اس کولر کا بھی خیال ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آگے بیٹھے ہوئے بچوں کا بھی خیال ہے، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں اس وقت ایک ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میرا نام لیکچرار ایم کے بھٹا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں زندہ ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میرا ایک سٹیٹس ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ معاشرے میں میرا کیا مقام ہے. یہ رینڈم فلو آف تھاٹ ہے. آپ کی ایگزسٹنس کے بارے میں خیالات مسلسل آپ کے ذہن کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں. اس کو رینڈم فلو آف تھاٹ کہتے ہیں.
अच्छा, इस टेक्निक के जो चैंपियन होते हैं, जो इस टेक्निक में स्टोरीज लिखते हैं, नावल लिखते हैं, दर हकीकत उनका स्टाइल भी ऐसा ही होता है, रैंडम होता है। यानी कि वो जो करैक्टर बयान करते हैं, उस करैक्टर के साथ जो कुछ बीत रहा होता है वो रैंडमली शो किया जाता है। स्टोरी शुरू जहां से होती है, अचानक शुरू होती है, 2 3 4 बातें इकट्ठे ही प्लेस कर दी जाती हैं स्टोरी के अंदर, और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। कभी बचपन का ख्याल, कभी मौजूदा हालात, कभी अपना स्टेटस, कभी कोई याद, ये मुख्तलिफ चीज़ें एट द सेम टाइम स्टोरी में रखी जाती हैं, और स्टोरी बिल्कुल लूज प्लॉट के साथ आगे फ्लो करती है। ऐसे जैसे हमारे जहन के ऊपर सोचें फ्लो करती रहती हैं, इसी तरह स्टोरी के अंदर इवेंट्स और स्टोरी का प्लॉट वो भी ऐसे फ्लो करता है, नेचुरली, रैंडमली, इजीली। और इसी तरह स्टोरी का कोई खास कंक्लूजन भी नहीं होता, क्योंकि ये कल्टीवेटेड थॉट के साथ स्टोरी को प्लेस नहीं किया जाता, बाकायदा सोच समझ के नहीं, बाकायदा रैंडमली, नेचुरली उसे बयान किया जाता है। अगर ये सारी बात मेरी आपको समझ नहीं आई तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस स्टोरी में बाकायदा ना कोई मॉरल होगा, इस स्टोरी में बाकायदा ना कोई इवेंट्स होंगे, बस ग्लैंस होगा। एक करैक्टर को हम देखेंगे, वो कहाँ से मूव कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, बस हम करैक्टर को देखेंगे। अगर आपने एक मूवी, जो मुझे यकीन है कि आपने नहीं देखी होगी, उसका नाम है धोबी घाट। गुड, जिन बच्चों ने देखी है बड़ा हौसला है आप लोगों का, उसे सिर्फ हौसले वाले ही देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको बोर लगेगी मुझे यकीन है। तो जो वो स्टोरी धोबी घाट है, एक्चुअली दैट इज आल्सो इन द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है, एक बस चीज़ों की लाइफ को बस दिखाया गया है, लाइफ को जोड़ा नहीं गया, लाइफ को संवारा नहीं गया, लाइफ को कल्टीवेट नहीं किया गया, लाइफ को मोड़ा नहीं गया, लाइफ के कंक्लूजन नहीं निकाले गए, बल्कि जिंदगी का, एग्जिस्टेंस का एक पास दिखाया गया है, एक तरीका दिखाया गया है। ये स्टोरी भी ऐसे है। ये स्टोरी का जो मेजर कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो खुद जेम्स जॉयस है। जेम्स जॉयस जो राइटर है, वो खुद ही स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है। और जेम्स जॉयस की उस वक्त एज जो है, हमारा अंदाजा है कि इसकी एज जो है उस वक्त 10 ईयर्स है, या 9 ईयर्स है, या 11 ईयर्स है जेम्स जॉयस की। जेम्स जॉयस अपनी जिंदगी के बारे में ही बता रहा है, जब अपने आप को इंटरप्रेट करेगा कि वो कहाँ पर रहता था, और वो क्या क्या सोचता था, और किन किन चीज़ों को किस किस अंदाज से देखता था। आप लोग बेहोश तो नहीं हो रहे, आपकी सोचें अपनी महबूबाओं की तरफ तो नहीं चली गई। आप लोग स्टोरी को सुनिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये स्टोरी ऊंचे कद की है, जिन्होंने आगे एम इंग्लिश लिटरेचर करना है स्पेशली, उनके लिए ये स्टोरी बहुत अहम है। उन्होंने बाद में इसी स्टोरी से कई रेफरेंसेस देने हैं। जेम्स जॉयस एक बला का नाम है, आपके लिए एक आफत का नाम है बीए में, ठीक है। लेट्स सी। तो जेम्स जॉयस अपनी ही जिंदगी के बारे में बताता है, वेरी सिंपल, क्लियर। पहले मैं आपको करैक्टर बता दूं कि इस स्टोरी में कितने करैक्टर्स हैं। पहला करैक्टर जेम्स जॉयस खुद है, जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है या 10 ईयर ओल्ड है, क्लियर। सेकंड करैक्टर, इसके अंदर 2 करैक्टर, अंकल और उसकी आंट, जिसके साथ जेम्स जॉयस उस वक्त रहा करता था, क्लियर। उसके बाद पॉस्टर, यानी कि पादरी, इसकी डेथ हो चुकी है, इसका जिक्र स्टोरी में जरूर है, लेकिन ये अब ही इज नॉट अलाइव एनीमोर, जिंदा नहीं है। उसके बाद मैनगन इज द फ्रेंड ऑफ जेम्स जॉयस। ये जेम्स जॉयस का दोस्त है, उसका हमसाया भी है। और मैनगन की सिस्टर, जिसका नाम असल में एलिन वेनिस था, एलिन वेनिस का नाम इस स्टोरी में नहीं बताया गया, लेकिन
जेम्स जॉयस की बाकी नावल पढ़ने के बाद, उसके ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि मैन गन की जो सिस्टर है उसका नाम एलिन वेनेसी था। यहाँ इस स्टोरी में सिर्फ ये बताया गया है कि मैन गन की सिस्टर, जेम्स जॉयस इस लड़की को पसंद करता है। क्लियर? ये भी अभी अपनी गर्लहुड में है, अपनी मीन के यू कैन से दैट वो 10 years ओल्ड है एलिन। आफ्टर दिस एक शॉपकीपर लेडी है जिसका आखिर में थोड़ा सा जिक्र होगा। शॉपकीपर लेडी है जो अरेबी बाजार में है। आर यू रेडी फॉर द आउटलाइन ऑफ स्टोरी? यस, गुड। स्टोरी जूं ही स्टार्ट होती है, जेम्स जॉयस सबसे पहले हमें बताता है, कहता है कि मैं अपने अंकल और आंट के साथ रहता था एक ब्लाइंड अलाय में, बंद गली में। बंद गली के सिरे पर एक 2 मंजिला मकान था जो कि एक मुरब्बा मैदान के अंदर ठहरा हुआ था, और बाकी मकान जो थे, गली के जो बाकी मकान थे, ज़्यादातर खामोश रहते। और बस उसी वक्त गली के अंदर थोड़ा सा शोर गुल पैदा होता जब क्रिश्चियन बिरादर स्कूल को छुट्टी होती थी। यानी कि वो एक बंद गली है, उस गली में एक स्कूल भी है, और स्कूल को जब छुट्टी होती है उस वक्त उसमें कोई रौनक थोड़ी सी होती है, अदरवाइज वो गली खामोश चुप रहती है। और कहता है राइटर, वो कहता है कि महज़ब लोगों की मौजूदगी की वजह से इन घरों में, स्ट्रीट के अंदर जो घर हैं, इन घरों में महज़ब लोगों की मौजूदगी की वजह से ये घर अपने भूरे चेहरों के साथ, बैरून चेहरों के साथ खामोशी से एक दूसरे को तकते रहते थे। अगर आपको किसी स्कूल वाली गली में रहने का या जाने का कभी इत्तेफाक हुआ है तो शाम के वक्त उन गलियों को देखिए, वो गलियां बहुत सूनी लगती हैं, और उस गली में जितने भी मकान होते हैं वो सारे बहुत खामोश लगते हैं। ऐसी कोई गली थी, और वो सर्द इलाके हैं इंतहाई जहाँ पर जेम्स जॉयस रहता है। जेम्स जॉयस कहता है, हमारा जो घर था पहले ये किसी पादरी के पास था, और उस पादरी की डेथ हो गई थी पिछले कमरे में, और ये कमरे ज़्यादातर बंद रहने की वजह से इनमें बासी हवा की स्मेल होती थी। अगर आप अपनी नानी नाना के घर कभी गए हों और वो पुराने घर हों और उनमें कई कमरे अगर बंद रहे हों तो उसके अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो एक बासी सी स्मेल होती है उसमें। तो देख रहे हैं राइटर का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, देखें वो हर चीज को कैसे महसूस करता है। घर खामोशी के साथ एक दूसरे को तकते रहते हैं क्योंकि उन घरों के अंदर मुहज़्ज़ब लोगों की मौजूदगी का एहसास मौजूद है। और फिर वो घर जिसके अंदर पादरी की डेथ हो गई है, उसके कमरे जो बंद रहने की वजह से सदियों से खामोश पड़े हुए हैं, उसके अंदर जब राइटर जाता है तो एक बासी सी खुशबू आती है। राइटर कहता है बावर्ची खाने के साथ पीछे एक कमरा था जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे, उसके अंदर कुछ किताबें भी थी। मैंने एक आध किताब वहां से निकाली थी। 3 किताबों में से मुझे एक किताब बहुत पसंद आई थी क्योंकि उसके पेज जो थे वो हिनाई रंग के थे, बैराउन कलर के थे। राइटर कहता है कि सहन के अंदर एक सेब का दरख्त था और जिसके नीचे उजाड़ गार्डन था, झाड़ियां थी, और मुझे एक दिन झाड़ियों के नीचे एक पुराना सा पादरी का एक साइकिल पंप भी मिला था। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक बड़ा सारा घर हो और एक बच्चा वहां पर तन्हा अकेला बच्चा हो, और वो जब अपने घर का मुआयना करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वो खामोशी से निकलता है तो उसे क्या क्या चीजें सामने आती हैं, मिलती हैं, और किन लोगों से वाबस्ता चीजें हैं। वो जो डेथ हो गई है जिनकी, उनसे वाबस्ता है, और वो कौन है? पादरी है। वो कहते हैं वो जो पादरी यहाँ रहा करता था वो बहुत मुखैर किस्म का, यानी कि खैरात देने वाला सखी किस्म का पादरी था, और मरने से पहले उसने अपनी तमाम तर जो जायदाद थी वो अपने बहन को दे दी थी, और कुछ उसने कोई फलाही इदारों को भी दे दी थी, राइटर कहता है। और कहता है हमें याद है, राइटर बताता है, कहते हैं मुझे याद है कि शाम का खाना खाते खाते अंधेरा छा जाया करता था।
एक तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सरमा जब आ गया, मौसम सरमा जब आ गया तो फिर क्या हुआ, दिन छोटे हो गए। शाम का खाना खाते खाते क्या हो जाता था, सर्दी बढ़ जाती और अंधेरा हो जाता था। और फिर हम घर से बाहर निकलते और फिर मैन गन और दूसरे दोस्त हम खेल कूद के लिए दूर निकल जाते। और घर के पिछवाड़े की तरफ जब हम जाते तो वहां पर कुछ लोगों ने कुटिया लगा रखी होती थी, झोपड़ियां लगा रखी होती थी। वो कोई कबायली लोग थे और उन झोपड़ियों के अंदर से मुख्तलिफ साजों की आवाजें आती रहती थी। और हमें नजर आता कि कुछ लोग वहां पर घोड़े के ऊपर सामान रख रहे हैं और साज के घंटियां बजने की या साज के या उसके ऊपर जो सामान रखा जा रहा है उसके टकराने की आवाजें सुनाई देती थी। गंद के बदबू के ढेर होते थे और वहां से बदबू आती थी। हम इतना खेलते कि हमारे जिस्म के अंदर सुइयां चुभने लगती थी। और लैंप जो है ऊंचे कद के लैंप ठहरे होते थे और उनमें कमजोर से टावर टाइप लैंप है और कमजोर से उन्होंने लैंप उठाए हुए होते थे। राइटर का विजन कैसा है, अजीब तरीके से चीजों को देखता है कि टावर ठहरे हुए हैं, पोल ठहरे हुए हैं, पोल ने जो लैंप उठाए हुए हैं, कमजोर से लैंप है जो उन्होंने उठाए हुए हैं, उसकी रोशनी में वो खेल रहे हैं। शाम की सर्दी हो रही है। जब हम खेलते 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 चक्कर लगाकर वापस आते थे तो गली के अंदर तमाम घरों के बावर्ची खानों की रोशनियां रोशन होती तो रोशनी गली में छन छन कर पड़ रही होती थी। और फिर मैं अक्सर साए में छुप जाता गली के नुक्कड़ में अगर मेरा अंकल घर में दाखिल हो रहा होता। और हम इंतजार करते कि अंकल घर के अंदर दाखिल हो जाएं। जब वो दाखिल हो जाते तो फिर हम सायों से बाहर निकल आते और रोशनी में फिर खेलना शुरू कर देते थे। और फिर इसी तरह मैन गन की सिस्टर वो भी दरवाजे में आके खड़ी होती और अक्सर वो अपने भाई को चाय के लिए बुलाने आती थी। और हम पहले तो सायों में छुप जाते और जब हम देखते कि मैन गन की सिस्टर यानी कि एलीन घर वापस नहीं जा रही तो फिर हम सायों से निकल आते और ताबेदारी के साथ उसके सामने जाके ठहर जाते। और मुझे याद है कि मैन गन अक्सर अपनी सिस्टर की बात मानने से पहले अक्सर उसे परेशान किया करता था। और फिर एलीन मैन गन की सिस्टर वो दरवाजे में नीम खुला दरवाज़ा होता आधा खुला और उसके अंदर से रोशनी पड़ रही होती थी और वो उस रोशनी में ठहरती और वो मैन गन को कहती कि चाय के लिए अंदर आओ। और मैं दूर कहीं जंगले के साथ ठहर जाता और जंगले को पकड़कर उसे देखता रहता। और मुझे आज भी याद है कि जब उसका रोशनी के अंदर जब उसका जिस्म हरकत करता, वो कोई बात करती तो उसका लिबास लहराता था, मैं उसे देखता था। मैं घर के अंदर भी जब होता तो मैं बार बार मैन गन की सिस्टर के बारे में सोचता रहता। मैंने उससे कभी भी बात नहीं की थी लेकिन पता नहीं क्यों उसका नाम हर वक्त मेरे लबों पर रहता था। नाउ द राइटर वांट टू से दैट ही वाज अननोइंगली इन लव। वो एक मोहब्बत की कैफियत में था। वो वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहता कि वो मोहब्बत कर रहा था, लेकिन सोचें कि 10 इयर्स का एक बच्चा जो कि सिनफ़े नाजुक की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके जज्बात क्या हैं। वो सारे टिमिड एंड माइल्ड फीलिंग्स हैं सारी की सारी। लेकिन उस लड़की को सोचता है बार बार और वो कहता है कि मेरी आंट जो है मुझे लेकर जाती थी बाज़ार। जब कोई चीज़ हफ्ते की शाम को सैटरडे नाइट को उसे बाज़ार से ख़रीदारी करनी होती थी तो मुझे साथ ले जाती ताकि मैं कुछ लिफाफे, कुछ बैग्स, कुछ शापर अपने हाथ में पकड़ सकूं। तो जब मैं बाज़ार में से गुज़रता था और मेरे हाथ में शापर होते थे, मेरे हाथ में बैग्स होते थे, सामान मैंने उठाया होता था, यानी कि गधे की तरह लदा हुआ होता था एट द सेम टाइम। और फिर हजूम होता था। वो कहते हैं ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर कभी ऐसे ख्यालात आ भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगहों पर भी मुझे मैनगन की सिस्टर के ख्याल जहन में मौजूद रहता था।
और फिर वहाँ पर बाजार के अंदर शराब के कनस्तर के आगे ठहरे हुए लड़के होते थे जो गुनगुना रहे होते थे। कुछ शराबी आपस में धक्का पेल कर रहे होते थे, कुछ सूर के सरों की वो बेच रहे होते थे, जैसे सिरी कहते हैं हम, सूर की सिरियां बेच रहे होते थे। तो वहाँ स्मेल भी होती थी, वो आवाज़ें लगा रहे होते थे। उस भीड़ के अंदर भी मैं जब उस लड़की को सोचता रहता तो मुझे ऐसे महसूस होता जैसे मैं अपना जाम मोहब्बत भीड़ के अंदर से बचा कर ले आया। उसका नाम ऐसे था मेरे लिए जैसे मेरा जिस्म एक बरबत, एक साज की मानद हो, गिटार की मानद हो, और उसके तमाम तर मैनर्स, तमाम तर अंदाज, उसकी तमाम तर शोखियाँ ऐसे हों जैसे गिटार के ऊपर उंगलियां होती हैं। वो बोलती, वो जो मैनर्स शो करती, वो ऐसे लगता जैसे गिटार के ऊपर उंगलियां चल रही हैं और मेरा जिस्म थरथराने लगता, बजने लगता, उसके अंदर से आवाज़ें आने लगती, रिदम पैदा हो जाती। कहता है कि मैं घर के अंदर दरवाजे के आगे दरीचे से थोड़ा सा ऊपर 1 इंच तक पर्दा ऊपर उठा देता और फर्श के ऊपर लेट जाता सुबह सवेरे, और लेट कर मैं उस पर्दे के नीचे से सामने मैनगन की सिस्टर के घर की दहलीज को देखता रहता। जैसे ही वो सुबह सवेरे स्कूल के लिए बाहर आती, मेरा दिल ऐसे उछलने लगता, ठीक है, और मेरे सीने में एक सलाब सा उमड़ आता और मैं एकदम जंप लगाता, किताबें पकड़ता और मैं गली में निकल आता स्कूल जाने के लिए, और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता, वो मेरे आगे आगे और मैं पीछे पीछे। और जहां से हमारे रास्ते जुदा होते थे, यानी कि जहां से उस लड़की का रास्ता और मेरा रास्ता जुदा होता था, वहां से पहले मैं तेज कदम भरते हुए उससे आगे निकल जाता और फिर आगे निकलकर मैं अपने रास्ते को हो लेता। उसने मुझसे बात नहीं की थी। एक दफ़ा शाम को मैं उस पादरी, जहाँ पर पादरी की डेथ हुई थी, उसी कमरे में गया और वो ऊपर वाली एटिक पर था, मंजिल पर था। वहाँ से एक शीशा टूटा हुआ था, वहाँ से मैंने बाहर देखा तो बारिश हो रही थी और बारिश की सुइयाँ नरम ज़मीन पर पड़ रही थी और बारिश की सुइयाँ पत्तों के तख्तों पर पड़ रही थी। और मैंने वहाँ से देखा मेरे दोस्त बाहर गली में खेल रहे थे और वहाँ पर भी मैंने अपने दोनों पाम्स को आपस में मला और मैंने कहा, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, मैंने अब कहा। मुझसे उसने बात नहीं की थी। एक दिन मैं जंगले के साथ ठहरा हुआ था तो वो भी वहाँ आ गई। उसने मुझसे बात की थी। उसने मुझसे कहा था, तुम अरेबी बाजार जाओगे? अरेबी बाजार जाओगे? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने हाँ कहा था या नहीं कहा था, मैं कंफ्यूज था। उसने कहा अरेबी बाजार बहुत खूबसूरत है। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों अरेबी बाजार नहीं जाती? उसने कहा इस सैटरडे को हमारे घर के अंदर कोई मजहबी तकरीब है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं अरेबी बाजार गया तो मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिर मैंने घर जाकर अपने अंकल से और आंट से बात की कि मुझे अरेबी बाजार जाना है और मुझे सैटरडे नाइट को अरेबी बाजार जाने की इजाज़त मिल गई। और फिर मैं स्कूल गया। किताब और मेरे दरमियान में उसकी शक्ल हायल हो जाती। मेरा दिल चाहता कि किसी तरह से ये दरमियान के दिन जो हैं बस स्किप हो जाएं और जल्दी से सैटरडे आ जाए, क्योंकि अरेबी बाजार के बारे में उसे किसने कहा था? अलीन ने कहा था। मैनगन की सिस्टर ने अरेबी बाजार के बारे में कहा था। उस वक्त कहा था जब वो जंगले के साथ ठहरी हुई थी। और जंगले के साथ जब ठहरी हुई थी तो राइटर बताता है कि उसने जंगले की एक सुलाख को पकड़ा हुआ था यूं, और फिर दरवाजे से पीछे चिराग की रोशनी
उसकी गर्दन के एक कर्व पर पड़ रही थी। वो कर्व मुझे अभी भी याद है। उसका सर और उसके गर्दन पर जो बाल थे उसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी और वो रोशनी में सारे बाल नहा गए थे। उसकी पेटीकोट जो ऊपर से उठी हुई थी, उसकी इस फ्रंट पेटीकोट के ऊपर यहाँ पर भी रोशनी अपना कर्व बना रही थी। राइटर को उसका हाथ भी याद है, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी। गर्दन का कर्व भी उसको उसके विजन में याद है। उसको अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर पेटीकोट वाली जगह पर यहाँ उसको जो वहाँ रोशनी पड़ रही थी वो भी याद है। और गर्दन की बालों के ऊपर जो रोशनी का एक वहाँ पर झमाका सा था, रोशनी की एक खूबसूरती थी, वहाँ पर ब्राइटनेस थी, राइटर को वो भी याद है। और राइटर ने उसे कहा था कि मैं अगर गया तो वहाँ से कोई चीज़ लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। दिन गुजर गए और राइटर कहता है कि मैं सैटरडे वाले शाम को जब मैं घर पहुंचा, खाना खाने के बाद हमारे घर में वो अमृतसर आ गई एक औरत थी जो कि पुरानी टिकट जमा करती थी किसी अच्छे काम के लिए। वो आ गई। मैंने चाय की टेबल पर उसको बर्दाश्त किया, उसकी गुफ्तगू को, और वो मेरे अंकल का इंतज़ार कर रही थी और मैं भी अंकल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो आएगा तो वो मुझे पैसे देगा और मैं जाऊंगा। और अंकल उस रात को बहुत लेट आए थे और मैं छत पर जाकर वॉक करता रहा था, इंतज़ार करता रहा था। और जब अंकल वहाँ पर आए तो उनके लड़खड़ाने की आवाज़ आई। फिर उन्होंने कोट को अपने उठाकर हैंगर पर फेंका, यानी कि वो शराब के नशे में धुत था। और जब ये नीचे आया तो इसने कहा कि मुझे अरैबी बाज़ार जाना है। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें अरैबी बाज़ार का मतलब पता है? फिर वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता जैसे कि दिन रात काम 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 और आराम बिल्कुल ना हो, ये चीज़ भी इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। फिर कोई एक आध और फिलॉसफी पर भी करता है अरैबी घोड़े के बारे में कि अरैबी घोड़े को अलविदा कहना इसका क्या मतलब है। व्हाट्सएवर उसकी आंट कहती है कि तुमने इससे वादा किया था कि इसने आज शाम को अरैबी बाज़ार जाना है, लिहाजा इसे पैसे दो और ये अरैबी बाज़ार जाए। वो कहता है इस वक्त तो लोग अपनी आधी नींद भी, पहले पहर की नींद भी ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो उसे एक फ्लोरिन देता है, एक करेंसी का नाम है, वो फ्लोरिन देता है। वो उसे जेब में डालता है, मुट्ठी में दबाता है और फिर गली में निकलता है। गली में बाजार खुले हुए हैं, लैंप की रोशनी है। लैंप की रोशनी और बाजार ने जेम्स जॉयस, यंग जेम्स जॉयस को याद दिलाया है कि उसने कहाँ जाना है। उसने एक बाजार जाना है। और वो कहता है कि मैं ट्रेन में सवार हो गया और वो खाली खुली सी ट्रेन थी जिसमें कोई भी नहीं था, मैं अकेला उसे बैठा हुआ था। और ट्रेन जो है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के दरमियान में से गुजरती हुई और दरिया के ऊपर से रिंगती हुई वो अरैबी बाज़ार की तरफ रवां दवां थी। एक जगह पर रुकी थी तो कुछ मुसाफिर ने आकर उस डब्बे में दाखिल होने की कोशिश की, दरवाज़ों को धक्के दिए, लेकिन उन्हें बताया गया ये ट्रेन इन मुसाफिरों के लिए नहीं है। और ट्रेन रवाना होती हुई अरैबी बाज़ार के सामने जाकर रुकी। और वो कहता है कि लकड़ी के एक प्लेटफार्म के ऊपर मुझे उतारा गया, मैं नीचे उतरा और सामने मैंने देखा कि बहुत बड़ा अरैबी बाज़ार लिखा हुआ था। और फिर मैंने दरवाज़ा ढूंढा और दरवाजे जब मैं दाखिल हुआ तो देखता हूँ तकरीबन ज़्यादातर बाज़ार बंद हो चुका है, क्योंकि ये वक्त है 9:50 PM, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, बाजार तकरीबन बंद हो चुका है। दैट इज वेरी 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 स्ट्रेंज सिचुएशन। दैट इज द conflict of reality and dream. That is the conflict of desire and facts. इंसान की ख्वाहिशात, उसकी बूस्टेड साउंड, वो बाजार जिसको इंडिकेट किया था एक खूबसूरत गर्ल ने, जो उसके लिए वो दिन रात जिसका नाम जपता रहता है, उस लड़की ने अरैबी बाजार का कहा था। तो अरैबी बाजार उसके लिए एक चमकता दमकता हुआ कोई बहुत पुररौनक बाजार था। वो वहां तक पहुंचा भी है, लेकिन बाजार आधे से ज्यादा बंद है। बाजार का आधे से ज्यादा डार्कनेस में होना ये रियलिटी है। और उसकी एस्पिरेटेड साउल जो थी, उसकी पुरजोश
इंथ्रॉल्ड इंथ्यूजिज्म से भरपूर जो उसकी साउल थी, वो उसका ड्रीम था, वो उसकी डिजायर थी, वो उसका लव था। और यहाँ पर वो आकर देखता है तो चंद एक दुकानें खुली हुई हैं, एक तसले के अंदर, एक थाल के अंदर दो लोग बैठे वो सिक्के गिन रहे हैं और सिक्कों की गिरने की आवाज वो सुनता है। वो आगे बढ़ता है तो एक वास, ये गुलदानों की एक शॉप है जहाँ पर क्रॉकरी का कोई और सामान भी है। वो वहाँ जाकर ठहर जाता है और साथ ही वो शॉपकीपर जो लेडी है वो दो और नौजवानों से बहस कर रही है। इन्होंने कहा नहीं था, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने ऐसा कहा था, नहीं मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने ऐसा कहा नहीं था, नहीं ऐसा तो नहीं कहा था। वो तकरार कर रहे थे और ये सुन रहा था और ये एक गुलदान को देख रहा है। वो लेडी उस बहस को छोड़कर आई और आकर पूछा कि तुमने कोई चीज लेनी है? और मैंने असबात में सर हिलाया और फिर उसने गुलदान को जगह तब्दील की थोड़ी सी और मैं वहां पर ठहर कर देखता रहा। और मैंने ऐसा ज़हर किया जैसे वाकई मैं उसके इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूं। ऐसा होता है ना अक्सर, मैंने शो किया कि वाकई मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन लैक ऑफ मनी और फिर बाजार का बंद होना, ये मायूसी, ये एक उसके दिल पर काला धब्बा था। और फिर कोई हैंडसम वर्दी चीज ऐसी नहीं है जो परचेज कर सके अपने बिलवड के लिए। दैट वॉज टोटली डिस्पेयर, मायूसी थी ये, लेकिन ये हकीकत थी। और राइटर कहता है कि मैं वहां से हटा और जैसे मैं हटा तो ऊपर वाली बिल्डिंग की लाइट चली गई और अंधेरे में से मुझे आवाज आई, लाइट चली गई है। राइटर ने कहा, मुझे उस वक्त यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक ऐसी मखलूक हूं जिसको उसकी अना हाँक रही हो। स्टोरी इज एंडेड। ये आखिरी बात बहुत अहम है। वो जिस तरह बूस्टेड हार्ट के साथ, जिस तरह वो एस्पिरेटेड साउल के साथ, जिस इंथ्यूजिज्म के साथ, जज्बात के साथ, जो विजन, जो ख्वाब लेकर वहां गया था, रियलिटी उससे डिफरेंट थी। उसे मायूसी हुई और जब आवाज आई कि लाइट चली गई है तो उसका मतलब क्या था कि तुम यहां से दफा हो जाओ। इट्स मीन दैट एक ऐसा शख्स जिसके अंदर मोहब्बत की कोई कैफियत मौजूद हो, चाहे वो किसी एज पर भी मौजूद है, उसके जहन की, उसके हार्ट की कोई कदर कीमत नहीं है, कोई एहसास नहीं है माशरे में। माशरे में उसके दिल पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है कि ये शख्स किस मूड के साथ, किस सोच के साथ यहाँ पर आया था, वारद हुआ था, और उसको सिर्फ ये कह देते कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि लाइट चली गई है। दैट इज रियलिटी। एंड फिर उसने अपने आप को महसूस कैसे किया कि जैसे वो एक ऐसी मखलूक हो जिसको उसकी अपनी अना, उसका अपना फखर जिसको हाँक रहा हो। हाँकते किसे हैं? बकरियों को, मवेशियों को, जानवरों को हाँकते हैं, और उसकी अपनी अनाओं से हाँक रही थी। तो दैट वाज अ स्टोरी। इस स्टोरी के बारे में यूनिवर्सिटी बाज का ये सवाल पूछती रही है और अक्सर पूछती रही है। मैं हैरान हुआ कि बताएं कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मुझे बड़े छोटे छोटे सर नजर आते हैं बाज़ औक़ात एग्जाम पेपर सेटर्स के कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट कैन बी द मॉरल ऑफ स्टोरी। स्टोरी का क्या मॉरल हो सकता है? दैट इज कंप्लीटली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और आपको जिंदगी का एक पॉज, जिंदगी का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जस्ट उसमें फीलिंग्स दिखाई जा रही हैं जस्ट एक कैरेक्टर की, उसके अंदर मॉरल नहीं है। और मैं कमाल हुआ कि बहुत सारे ऑथर्स ने तो बकायदा सवाल बनाया है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मोहब्बत पैदा ना हो, उनकी तरबियत ऐसी करें कि मशीन लगवा दें, खस्सी करवा दें उन्हें।
खुदा खौफी करें भाई। आप अपने जाके बाप के दिल पर हाथ रख के पूछे तो आपका बाप भी आपको बताएगा कि 10 साल की उम्र में उसकी क्या फीलिंग थी और किस कतरीना कैफ के लिए थी। 10 साल की उम्र में सबके बाप जो आप दाढ़ी रख के बैठे होते हैं वो जब उस पीरियड में होते हैं, 10 साल की उम्र में होते हैं, पूरे इमरान हाशमी बनने की कोशिश करते हैं। तो तुम कौन सा मारल ढूंढते हो भाई? खुदा खौफी करो। कम से कम काफरों को पढ़ा रहे हो, काफरों को पढ़ रहे हो, तो काफरों के नजरियात वही काफरों वाले बताओ जो नजरियात उसने बयान किए हैं, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि ये काफिर हैं और हम काफिर नहीं हैं, हम इस्लामी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लो मेरा बेटा, अब बुक खोलो। In my hand there is Acute English Short Stories by advanced publisher, and this book is written by me M.K. Bhutta. Now the page number is 12 and there are questions, 12 per questions हैं, near about 10 questions मैंने बनाए हैं. After this there is answer, single answer is over there, और इंशाल्लाह ये आंसर तमाम क्वेश्चंस को कोप करेगा. Let's see. First of all the topic, the first paragraph, passion. पैशन के टॉपिक से है. आपने ये ब्रैकेट वाले जो लफ्ज होते हैं ये एग्जाम में नहीं लिखने होते, ब्रैकेट वाले लफ्ज नहीं लिखने होते. ये ब्रैकेट वाले लफ्ज इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पैराग्राफ याद रहें. और दूसरी बात ये है कि एग्जाम में बाज़ औक़ात आपके पास 4 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, और अगर उसने सवाल रेज किया है पैशन के ऊपर तो आप सिर्फ पैशन वाला पैराग्राफ ही लिख देते हैं. अगर उसने आपसे सवाल रेज किया है विजिट के ऊपर कि अरैबी बाजार में विजिट कैसा है, तो अगर आपके पास टाइम ही 3 मिनट्स हैं तो बजाय इसके कि पैशन वाला पैराग्राफ भी लिखें जो रेलिवेंट नहीं होगा, आप विजिट वाला डायरेक्ट लिखेंगे. गो के साइज तो पूरा नहीं होगा लेकिन आपका जवाब तो एग्जैक्ट कम से कम होगा. इसलिए मैंने इसको इंडिकेट इस तरह से भी किया है, हर लिहाज से आपको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है. पैशन, फर्स्ट पैराग्राफ. In Arabi, James Joyce himself is a central character of his story. अरबी कहानी में जेम्स जॉयस खुद ही अपनी स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है. ही इज इन हॉट यूथ. वो इमरान हाशमी वाली जवानी लिए हुआ है. जवानी जो उसको चढ़ी हुई है वो हाशमी जवानी है. एंड क्लाउडी माइंड. और जहन जो उसका है वो जॉनी लीवर वाला है, क्लाउडी माइंड है, क्लियर नहीं, गैर वाज़े जहन है उसका. विच इज फुल ऑफ फुलिश नाइस. और ये जहन जो है फुलिश नाइस से भरा हुआ है, बेवकूफाना शोर से भरा हुआ है. His stream of consciousness becomes obvious. और इस करैक्टर का बेतरतीब ख्याल उस वक्त वाज़े हो जाता है. इस करैक्टर का जहन उस वक्त हमें वाज़े हो जाता है. इस करैक्टर का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उस वक्त वाज़े हो जाता है. कब वाज़े होता है? When he tries to tame his wild heart. जब उसने अपने जंगली दिल को पालतू करने की कोशिश की, जब उसने अपने जंगली दिल को सीधा पतरा करने की कोशिश की, उसको सुधारने की कोशिश की. किसे सुधारने की कोशिश की है? कैसे अपने दिल को टेम करने की कोशिश की उसने? एट अ ब्राइट बटरफ्लाइज लविंग हैंड कॉमा. जब उसने अपने वैशी दिल को उस खूबसूरत चमकदार तितली के हाथ, वेस्ट, उसकी नाजुक कमर, एंड नेक, और उसकी गर्दन के ऊपर अपने जंगली दिल को जब उसने टेम करने की कोशिश की है तो उसके अंदरूनी, उसका सेंट्रल, उसका अंदरूनी जो ख्याल था वो बिल्कुल वाज़े हो गया. जब उसने मोहब्बत की और जब उसने लाइक किया एलीन के हाथ को जिस पर रोशनी पड़ रही थी, उसकी वेस्ट को, कमर को जिस पर रोशनी पड़ रही थी, और उसके हेड पर जहां रोशनी पड़ रही थी, जब इन जगहों को
सर को, हाथ को और उसने वेस्ट को जब लाइक किया और उससे अपने जंगली दिल को उससे सुधारने की कोशिश की, उसको लगाने की कोशिश की वहां पर, तो उस वक्त राइटर के अंदर का ख्याल वाजे हो गया, बड़ा गंदा ख्याल था। ठीक है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कोई अच्छा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं था। ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। ये जेम्स जॉयस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में रहता था, ख्वाबों की दुनिया में रहता था। द डिस्ट्रक्टिव ड्रीम ऑफ लव बिकम द वर्किंग वीक। ये तबाहकुन मोहब्बत का ख्वाब, ये उसका वर्किंग वीक बन गया। काम करने वाले हफ्ते के दौरान वह सब मोहब्बत ही याद करता। संडे रेस्ट, संडे का रेस्ट भी होता तो फिर भी वो लता मंगेशकर के गाने सुनता रहता। हिज नून, दोपहरों को भी बैठ के वो मोहब्बत ही झपता रहता। हिज मिडनाइट, और रात को उठ उठ के कहता कि हाय अलीन, हाय अलीन। हिज टॉक, गुफ्तगू में भी वो गुफ्तगू में भी वो उसी का नाम छपता रहता था। एंड हिज साउल, और उसकी रूह के अंदर ये कथीना कैफ बसती थी। ठीक है, और ये जो मोहब्बत का ख्वाब उसकी रूह में, उसके संडे रेस्ट में, उसकी नून में, उसके वर्किंग वीक में, उसकी मिडनाइट में जो मौजूद था, ये मोहब्बत का ख्वाब फुल ब्लोन हिम अ पॉइजनस डेमोन। इसने जेम्स जॉयस को फुलाकर एक जहरीला भूतना बना दिया था कि मोहब्बत में वो चूर चूर एक डेमोन की तरह फिर रहा है। हर जगह पर उसको वहीं एलीन नजर आती है। He says he says जेम्स जॉयस फरमाते हैं, जब वो नौजवान थे जेम्स जॉयस उस वक्त फरमाते हैं, जवान जब था तो उस वक्त फरमाते हैं ना भाई। देखिए अब तो जब राइटर लिख रहा है तो उसकी उम्र काफी सारी है ना, तो अदब के साथ बुलाएंगे ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो तो हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, उस्ताद मंगू को पढ़ रही थी। मैंने कहा उस्ताद मंगू ने गोरे सोल्जर से क्या कहा, तो लड़की ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उसने कहा उन्होंने कहा कि कहाँ जाना मांगता। उस्ताद मंगू की उम्र को देखकर उन्होंने बड़े अदब के साथ लड़की ने कहा उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने जिस अंदाज में कहा तो आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो फिर तो जेम्स जॉयस कम से कम टांगे वाला तो नहीं है ना। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने फरमाया। क्या फरमाते हैं जी जेम्स जॉयस साहब, बट माई बॉडी वॉज लाइक अ हॉक। कहता है मेरा जिस्म एक बरबत की तरह था, एक साज की तरह था, फरंगी की तरह था। एंड हर वर्ड्स एंड जेस्चर्स वर लाइक फिंगर्स, और उस लड़की के अल्फाज और अंदाज जो हैं वो उंगलियों की तरह थे, जैसे गिटार पर उंगलियां होती हैं। रनिंग अपॉन द वायर्स, जैसे सरंगी की तारों के ऊपर वो उसके अल्फाज ऐसे थे जैसे उंगलियां चल रही हो। तो सरंगी की तारों पर जब उंगलियां चलती हैं तो क्या होता है, आवाज पैदा होती है ना, रिदम पैदा होती है। वो आपने सुना नहीं है सॉन्ग जिसमें कहते बोले दिल दी गटार डूम डूम जानिया, सुना नहीं? ये मोहतरमा इज्जत माब पीरे तरीकत रहबर शरीयत नूर जहां ने गाया था। मुसलमान थी बेटा, हाजी भी किए हैं उसने। अच्छा जी, आगे देखें। और फिर जब वो उसकी दिल की गटार जो है, बॉडी जो है वो डूम डूम करती है, उसके बाद वो कहता है, साथ गीत भी गाता है, कहता है ओ वो साथ साथ उसके दिल से आवाज भी आती है, ओ लव ओ लव। वो कहते हैं माँ मिरासन ते पुत्र मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये वो वाले हैं। ठीक है,
विजिट, नेक्स्ट पैराग्राफ है विजिट। लिटिल कैंडल थ्रोज हर बीम ऑन अरेबी। ए लिटिल कैंडल, ये लिटिल कैंडल कौन है? ये एलीन है, ये मैनगन की सिस्टर है। मैंने इसको कहा है कि ये छोटी सी एक शम्मा थी जिसने रोशनी फेंकी किसके ऊपर? अरेबी बाजार के ऊपर। जब अरेबी बाजार के ऊपर इस शम्मा ने रोशनी फेंकी है तो जेम्स जॉयस के लिए वो अरेबी बाजार एक सितारे से कम नहीं था, वो चमकने लगा, वो दमकने लगा अरेबी बाजार। और फिर ये जेम्स जॉयस एक परवाने की तरह, एक मूत की तरह ये उस अरेबी स्टोर की तरफ चल निकला, उसकी तरफ भागने लगा, उसकी तरफ उड़ने लगा। नहीं समझे बात को? वो एक ब्राइट कैंडल की तरह है जो रोशनी फेंकती है किस पर? अरेबी बाजार पर। अरेबी बाजार चमकने लगता है, दमकने लगता है, और फिर ये जब वो चमकने लगता है तो ऐसे चमकने लगता है जैसे वो स्टार हो, तारा हो। और फिर ये जेम्स जॉयस क्या बन जाता है? ये एक परवाना बन जाता है। और ये परवाना जो है उस सितारे की तलाश में निकल पड़ा है, शम्मा की तलाश में नहीं, सितारे की तलाश में निकल। शम्मा तो वो खुद है। ठीक है जी, चीज़ें बिल्कुल सेट अपने जगह पर ठीक की गई हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज़ान मुबारक हो जाए ताकि उसके बाद मैं फिर शुरू करूँ, लेकिन आज मेरे ख्याल लेट है मौलवी साहब। आज़ान हो जाए, सारे दरूद शरीफ पढ़ेंगे। आज पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस बेटा दुरूद शरीफ आप ख़त्म करें। अटेंशन प्लीज़। दुरूद शरीफ जिसने पढ़ा है सारे रतन के मिल्क करें, रतन फिर आगे भेज देगा। विजिट देखिए बेटा, विजिट देखिए। नेक्स्ट, लिटिल कैंडल थ्रोज हर बीम
یہ چھوٹی سی شمع روشنی اپنی ڈالتی ہے، پھینکتی ہے آن عربی بازار پر، اینڈ اٹ بگنز ٹو بلیز، اور عربی بازار دمکنے لگتا ہے، دہکنے لگتا ہے۔ دا ڈیزائر آف دا موتھ، اور اس پروانے کی جو خواہش تھی، اس پروانے کی خواہش فار دا عربی اسٹار، عربی جو اب ایک اسٹار کی مانند چمک رہا ہے، اس کے لیے جو پروانے کی یہ جو خواہش تھی، موتھ مین پروانہ، میڈ ہز سیچرڈے نائٹ آر ٹیئرز نائٹ، اس خواہش نے اس پروانے کی سیچرڈے نائٹ کو آنسوؤں سے بھر دیا، ٹیئرز نائٹ بن گئی، سیچرڈے نائٹ اس کی شب رم جھم بن گئی، ویلز نائٹ بن گئی، شب غم بن گئی، تھمپس نائٹ شب ماتم بن گئی، فرائٹ نائٹ اور شب دہشت بن گئی، اینڈ شٹر نائٹ اور شب انتشار بن گئی، یعنی کہ اس رات کو اس کے سارے ڈریمز بکھر گئے، اس رات کو اس نے آنسو بھی بہائے، اس رات کو اس نے ماتم ویل بھی کیا، اس رات کو اسے دہشت بھی ہونے لگی حقائق سے، حقیقت سے۔ ہی ود شیڈو، اور وہ اپنے خیال کے ساتھ، شیڈو خیال، اپنے سائے کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ، فیلز ہمسیلف بوریڈ، اس نے اپنے آپ کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ مدفن ہو، جیسے وہ دفن ہو گیا ہو، ان دا ڈیپ ڈارک سائلنٹ ٹام آف عربی، جیسے عربی کے ڈیپ ڈارک سائلنٹ ٹام کے اندر وہ دفن ہو گیا ہو، ایسے لگا جیسے عربی ایک مقبرہ ہو، خاموش، تاریک، اور اس کے اندر وہ اپنے تمام خیالات، ڈریمز کے ساتھ جیسے دفن ہو گیا ہو۔ سو انڈر دا پریشر آف آبجیکٹو ریئلٹی، دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آبجیکٹیوٹی اور دوسری ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی۔ سبجیکٹیوٹی کا مطلب ہے ذاتی سوچ، آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے معاشرتی سوچ، بیرونی سوچ۔ آپ دیکھتے ہیں رائٹر کی اپنی سبجیکٹیوٹی کیا ہے، اس کا خواب ہے، اس کی محبت ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی وہ ساری فیلنگز ہیں، اس کے ڈریمز ہیں، ڈیزائرز ہیں اس کی، یہ اس کی سبجیکٹیوٹی ہے۔ اور بیرونی آبجیکٹیوٹی کیا ہے باہر کی، وہ تاریکی ہے، وہ بازار کا بند ہونا ہے، وہ مایوسی ہے، وہ کسی کے حساس، کسی کی احساس جو اس کے من میں ہے اس کی قدر و قیمت کا نہ ہونا ہے، یہ آبجیکٹیوٹی ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سو انڈر دا پریشر آف آبجیکٹو ریئلٹی، بیرونی حقیقت کے پریشر کے تلے، بیرونی دنیا کی حقیقت کے پریشر میں his subjective feelings were broken down، اس کی ذاتی جو فیلنگز تھی وہ ساری ٹوٹ گئی، اینڈ ہی said، اور اس نے فرمایا، پھر فرمایا، gazing into the darkness، کہ تاریکی میں گھورتے ہوئے، جیمز جوائس نے کہا، کہتا ہے اس وقت، آخری سنٹنس ہے اس کی سٹوری کا، کہتا ہے کہ تاریکی میں گھورتے ہوئے I saw myself as a creature، میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی مخلوق پایا، اپنے آپ کو ایک ایسی کریچر پایا، ڈرائیون، جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، اینڈ ڈرائیڈڈ، اور جس کا تماشا بنایا جا رہا ہو، کس کے ذریعے، بائی وینٹی، چھچورے پن کے ذریعے، فخر کے ذریعے، پرائڈ کے ذریعے، انا کے ذریعے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری انا میرا تماشا بنا رہی ہے، جیسے میری انا میری ہی تذلیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کچھ زیادہ ہی امیجن کر لیا تھا، میں نے کچھ زیادہ ہی سوچ لیا تھا۔ ڈریم کا ہونا بری بات ہے، اگر آپ کے اندر سے آپ کے ڈریم نکال لیے جائے تو آپ غبارے کی طرح شرنک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، آپ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جو لوگ اس حق میں ہیں، جو کہتے ہیں حقیقت پسند ہو بننا چاہیے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ان کے اندر سے ڈریمز نکال لیے جائیں، ایمز نکال لیے جائیں،
उनके अंदर से अगर डिजायर्स निकाल ली जाएं तो बताएं कि वो माशरे में करेंगे क्या? वो तो चादर डालकर सो जाएंगे और कहेंगे जी मौत आए जल्दी से। आप सोचें कि अगर आप मैट्रिक ही करना चाहते थे तो फिर आपने ऐसे क्यों किया, बीए के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि ड्रीम है तो आप जिंदा हैं। मुझे बताएं कि एक शख्स जो गरीब घराने में पैदा होता है वो सारी जिंदगी कोशिश करता है और उसे पता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले और जिंदगी के आखिरी हिस्से में 60 साल जिंदगी में ब्लाइंड हार्स की तरह काम करने के बावजूद वो सारी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया 10 मिलियन सिर्फ इकट्ठे कर पाएगा। अगर ऐसा ही है तो बताइए जो बच्चा 100 मिलियन लेकर पैदा होता है वो फिर आगे क्यों 300 मिलियन का ख्वाब देखता है? वो क्यों ड्रीम बनाता है? क्योंकि अगर ये ड्रीम नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ड्रीम इज वेरी नेसेसरी। अगर आपको याद है फर्स्ट ईयर के अंदर आपको एक प्ले पढ़ाया गया था, उसका नाम था ऑस्टर एंड पर्ल। आखिरी तीसरा प्ले था ऑस्टर एंड पर्ल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। आपको पता नहीं टीचर्स ने उसका थीम बताया नहीं बताया, वो बहुत कद्दावर किस्म का प्ले है। उसके अंदर एक लड़का है जो गरीब है और जिसका बाप जो है घर से चला गया है नाराज होकर, वो अपने बाप को घर वापस लाना चाहता है और वहां पर एक बार्बर की शॉप है, वहां पर एक नाई की शॉप भी है और वहां उस हैरी बार्बर के पास ये बच्चा रोजाना बैठा रहता है। ठीक है, एक दिन ये बच्चा जाता है और समंदर में से तलाश करके लाता है एक ऑस्टर। ऑस्टर क्या होता है? एक बड़ा सारा सीप होता है। सीप, सिप्पी तो देखी होगी ना, अगर बड़ी सारी सिप्पी हो तो उसे सीप कहते हैं। सिप्पी दोनों तरफ से बंद होती है और अगर 10 लाख सीप हो, ऑस्टर हो, 10 लाख में से एक ऐसी ऑस्टर होती है जिसके अंदर रेत का जरा चला जाता है। वो रेत का जरा उसके वजन, उसके जिस्म के अंदर, ऑस्टर एक जिंदा जानवर है, सिप्पी ये जिंदा जानवर होती है। अगर आप कराची की सहल पर जाएंगे तो वहां पर सिप्पियों को भून कर लोग खा भी रहे होते हैं, बछेरे वहां पर। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से ब्लड, पूरा जानवर होता है ना अंदर। तो कितने हो? 10 लाख। 1 मिलियन में से एक ऑस्टर ऐसा है जिसके अंदर एक जरा चला जाए अगर रेत का, तो वो अंदर जाकर पर्ल बन जाता है, मोती बन जाता है कीमती। ये बच्चा एक ऑस्टर उठा के लाता है और बार्बर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इसके अंदर शायद पर्ल है। ठीक है, और हैरी कहता है, जो वहां पर नाई है, वो कहता है कि इसके अंदर पर्ल होगा। वहां पर एक और टीचर है, स्कूल टीचर, उसका नाम है मिस मिक्किचियान। मिस मिक्किचियान, मिक्की नहीं, बड्डी है। हाँ, मिस मिक्किचियान। मिस मिक, आप जरा केस सुनिए, केस सुनिए। शॉप के अंदर एक बार्बर है, शॉप के अंदर बार्बर के पास कटिंग करवाने के लिए आया हुआ है एक राइटर है। शॉप के अंदर तीसरा जो बड़ा शख्स मौजूद है वो मिस मिक्किचियान है। बच्चा वहां पर लेकर आया है क्या? बच्चे को पैसों की जरूरत है और बच्चा कहता है कि इस ऑस्टर के अंदर पर्ल होगा। मिस मिक्किचियान कहती है कि देखो हैरी, बच्चों को झूठ मत सिखाओ। अगर 10 लाख ऑस्टर हो तो उसमें से किसी एक के अंदर पर्ल पाया जाता है और इस ऑस्टर के अंदर पर्ल नहीं हो सकता। लाजमी तो नहीं ये 10 लाख में से एक हो और यकीनन इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये रेयर है, बहुत रेयर है। और तुम बच्चे को ये कह रहे हो कि इसके अंदर हाँ हाँ पर्ल होगा। अगर इसे खोला गया, इसके अंदर से पर्ल ना निकला तो बच्चा हमेशा के लिए मायूस हो जाएगा, बच्चा दिल बर्दाश्ता हो जाएगा, बच्चा इस हकीकत को पाकर बहुत ही मायूस हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं जी सकेगा। और हैरी कहता है कि नहीं, इसके अंदर पर्ल है। अब ये बड़ा अजीब केस है, हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे को क्या हकीकत बतानी चाहिए कि इसके अंदर पर्ल नहीं है। क्यों, आपका क्या लगता है? अगर 10 लाख में से एक के अंदर पर्ल हो तो क्या बच्चा जो लेकर आया है ऑस्टर, इसमें पर्ल होगा?
नहीं, इसे पर्ल नहीं हो सकता बेटा। देखो ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, 10 लाख में से एक के चांस है होने के, और 10 लाख में से 9,99,900 के चांसेस क्या है, नहीं होने के हैं। तो इसमें नहीं होगा, ज्यादा चांसेस तो ये है। एक मिनट, ज्यादा चांसेस यही है, आर्गुमेंट कितने भी कर लेंगे, ज्यादा चांसेस यही है कि इसमें पर्ल नहीं है। लेकिन मिस मिकिचियन कहती है कि बच्चे को बताओ कि इसके अंदर पर्ल नहीं है, क्योंकि नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है। वो सही कहती है। हैरी कहता है नहीं, इसमें पर्ल है। तो हमारा ख्याल भी यही है कि इसमें पर्ल नहीं होगा। लेकिन वहां पर राइटर बैठा हुआ है जो ये सारी गुफ्तगू सुनता है, तकरार सुनता है। तो राइटर कहता है, वो कहता है मैं ये ऑस्टर खरीदना चाहता हूं, कितने का बेचोगे? तो पर्ल की कीमत डालकर उसे बताया जाता है कि ये इतने डॉलर का, $10 का है सपोज ऑस्टर। अब ऑस्टर को तोड़ा नहीं गया, खोला नहीं गया, देखा नहीं गया कि उसके अंदर पर्ल है या नहीं है, और राइटर खरीदने के लिए तैयार भी हो गया है। राइटर ने वो ऑस्टर खरीद लिया और बच्चे ने उसे $10 का बेच दिया। बच्चा पूछता है राइटर से, क्या आप इसे खोल कर देखेंगे नहीं कि इसके अंदर पर्ल है भी सही या कि नहीं? तो राइटर जवाब देता है, वो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि पर्ल की अफज़ाइश रुक जाए। प्ले यहां पर एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें पर्ल ना भी हो तो ये यकीन रखो कि इसमें पर्ल है, क्योंकि उम्मीद है तो दुनिया है, उम्मीद है तो जिंदगी है, ड्रीम, डिजायर और एम है तो जिंदगी है। अगर ये नहीं है, इसकी अफज़ाइश रुक गई तो जिंदगी रुक जाएगी। कितना बड़ा लेसन है, ठीक है? तो इसीलिए ड्रीम्स कैरेक्टर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये ड्रीम ऑब्जेक्टिव रियलिटी में क्रश हो गए हैं, पाश हो गए हैं। और शायद जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में ये बताना चाहता है कि ड्रीम्स जो हैं इनको शटर नहीं होना, ड्रीम्स हैं तो जिंदगी है। The writer just points out the mental process of a young boy. राइटर ने जस्ट पॉइंट आउट किया है मेंटल प्रोसेस। उसने एक ज़हनी अमल दिखाया है, किसका? यंग बॉय का, इन सिविलाइजेशन, मौजूदा माशरे में, इंस्टेड ऑफ एनी मॉरल, बजाय इसके कोई मॉरल देने के। राइटर ने कोई मॉरल नहीं दिया इसके अंदर, वो कोई मुबल्लिग, कोई प्रीचर, कोई रिफॉर्मर नहीं बना, बल्कि उसने क्या दिखाया है? मेंटल प्रोसेस दिखाया है। किसका? यंग बॉय का। यंग बॉय याद रखना है, यंग बॉय 10 साल का है, छोटा बच्चा है, आप बड़े सारे हैं। Thus I conclude that आखिरी लाइन आप अपनी मर्जी लिखेंगे, so nice of you, take well care of yourself.